Morning, sir. So, good morning, everyone. It's my pleasure and honor to privilege to introduce our esteemed resource person, today's on-the-job training workshop, Mr. Athar Mahmood Siddiqui. Athar sir brings with him over 3 decades of rich teaching experience, having taught English and social science in reputed institutions like Sanjay Coaching Institute, Dhampur, Sanjay Gandhi Smarak Vidyalaya, Hidayatpur, and St. Mary's Intermediate College, Bhikawala, where he served with great dedication till March 2025. He is not only experienced teacher, but also passionate educator who believes in creative learning, behavior modeling, and the power of smart classrooms. His professional strengths lie in classrooms management, student mentoring, issue resolution, and effective parent-teacher communication. Athar sir conduct numerous teaching training sessions focusing on upgrading teaching techniques and integrating co-curricular activities into the classroom learning. He is well versed in MS Office, Photoshop, and has actively contributed to stage management, educational outing, and report writing. With his deep knowledge, kind approach, and inspiring communication, we are sure today's session will be interactive, engaging, and full of practical insights. Please join me, Mr. Athar Mahmood Siddiqui, with a warm round of applause. Thank you. Good morning. How are you? These are the very old fashioned words. We can use the fantastic. I'm fantastic. Say fantastic. Okay. Fantastic means all round development is good. Okay. Some are my students also here. I'm very happy to visit all of you. First of all, I want to ask one question. Everybody knows English easily, or some have difficulty to understand the language. हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है. किसी को अगर प्रॉब्लम है तो जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये नहीं होना कि क्लास में आए और हम कुछ नहीं सीख सके. नो हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन. सर दोनों में करें, एक में करें? ओके, थैंक यू सर. सो नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल I want to say something about yourself. एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टीचिंग जॉब जो हम लोग कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हमने इसको सिर्फ कागजी तौर पर चुना है या हम टीचर हैं? इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है? कोई भी, सब में से कोई भी बताए जो भी आपकी समझ में आता है कि हम टीचर हैं या हम केवल बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो इसलिए हम टीचिंग कर रहे हैं. इस पर कोई भी बताए. कोई भी बता सकता है? ठीक है. सर मैं अपने बारे में बता देता हूँ. सो हैप्पी टू बी टुडे अ स्टूडेंट. देखिए मैं आई जस्ट जॉइन दिस बिकॉज़ आई वाज फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंज इन माय लाइफ. आई वाज इंडेप्टेड, मैं कर्जा ही था, पैसे की जरूरत थी तो मैंने ज्वाइन किया.
But later on, I discovered that I have a passion also for teaching. I am passionate, I am enthusiastic. Later on, I realized. Initially, I joined for financial need of mine. Later on, I got to know that I had a passion. So I am here as a teacher. Now I want to give more to my student. I want to make them bright in all the sense. Thank you. Anyone else can speak? Why you are here in this profession? Are you teacher or only paperwork teacher? This is the question. Yeah. If someone say yes, say your name first. My name is Pooja Vishnavi. I'm from Upsalar, and I have done my postgraduate in drawing and painting and English also. That first of all, I want to say that drawing is my passion, and I love and I like drawing too much. But when I joined this profession of teaching, then I know all the things is in drawing. But when I was teaching the students, so many things I learned from the students, and so many things I teach to the students. So that's why I know that teaching also is very good skill. Thank you. Sit down. Anyone else? कोई और जो बताना चाहे? ठीक है, हम लोग इसे शुरू करने से पहले अपने फर्स्ट सेशन को, क्योंकि जब हम इस दुनिया में हैं तो ज़रूर उसको भी याद करें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो मैं शुरू करूंगा, एक छोटी सी प्रेयर है, वो सबको सुनना है बस, और उसके सारे वर्ड्स पर ध्यान देना है। फैन ऑफ कर सकते हैं हम? हाँ, फैन ऑफ कर दीजिए, सब कुछ ऑफ कर दीजिए, सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, सारे ही स्विच ऑफ कर दीजिए। ये मैं भी अक्सर करता हूँ क्लास में, फैन से ना आवाज इसको ध्यान से सुनना है हमको। सुनिएगा थोड़ी देर।
तालियां। आप लोगों से एक सवाल करूंगा शुरू में ही, और मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम यहाँ, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? 40 और 35? 32. We are 32 here, some other officer in charge also. I want to know, हम सब में अनकॉमन दो चीजें, हम सब में, ये शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, इसमें दो चीजें अनकॉमन, क्या हो सकती हैं वो दो चीजें? Millions of people are living in this world, but they have some different things. वो दो चीजें क्या हैं जो हम में सबसे अलग? Thumb impression. Thumb impression. Say your good name. My name is Jaspal Singh. Mr. Jaspal Singh said thumb impression. And another one is Can be a thought process. thought process. But many people and millions of people will thought about anything. But something different, just like thumb impression or fingerprints. Down. So we can say face. Say Face. face. Uh, I read sometimes some people resembles to each others. So this is not good. Down. Behavior. Everybody have behavior. Down. Anything? That is eyes. Retina. Retina and fingerprints are different millions of pupils. जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके फिंगरप्रिंट और रेटिना अलग अलग है। इसके अलावा एक और सवाल मैंने किया था आपसे कि आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं? क्या वो व्यक्ति ही टीचर हो सकता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हो बीएड के या डिग्री हो? क्या वही टीचर हो सकता है? एक्सेप्ट। लेकिन एक गाइडलाइन तय की गई थी लॉर्ड मैकाले के टाइम में, जब भारत में एजुकेशन की शुरुआत हुई, स्कूल्स की शुरुआत हुई, तो एक शुरुआत की गई थी कि एक क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाए। शायद आप हिस्ट्री में जाएंगे एजुकेशन की, तो पहले क्लास थर्ड तक का, जैसे आज हमारे यहाँ फिफ्थ एट्थ होता है, क्लास थर्ड तक क्लास हुआ करती थी। क्लास थर्ड के बाद फिर आगे का क्लास था, और क्लास मिडिल कहा जाता था, फिर मैट्रिक्स कहा जाता था। इस तरह से पार्टीशंस थे, तो वो सब बनाए गए थे, और उसी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस इंग्लिश पीरियड में डिसाइड कर दी गई। जैसे आज टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट होने के साथ ट्रेंड सर्टिफिकेट एक होना है। लेकिन क्या उन शर्तों को पूरा करने के बाद टीचर बन पाते हैं? वो तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, वो हमें रखना ही रखना है। एक चार्ट आप यहाँ देख रहे हो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ये एक पर्सनैलिटी लिखी हुई है। वी हैव पर्सनैलिटिकल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। हम सारे पर्सनैलिटी हैं, जितने भी लोग हैं सब पर्सनैलिटी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे पर्सनैलिटी नहीं कहा जाए। और एक चीज और बता दें आपसे, कोई भी वीक या बुद्धू नहीं होता है। जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है वो टीचर के लिए यूज नहीं होती। एक टीचर के सामने कोई भी कमजोर, कोई भी बुद्धू नहीं होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज सम एलिमेंट्स इन देयर बॉडी। सबके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। हमें अपने एलिमेंट्स को पहचानना है। जब तक हम एलिमेंट्स को नहीं पहचान सकते, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। एक टीचर को सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा। सबके अंदर स्किल्स हैं, एवरीबडी हैव स्किल। आज आपको एक बात और बता दें, इंटरनेशनल लेवल पर डिग्री और आपके मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं। दे वांट स्किल। आज वो एक रिक्शे वाले को भी स्किल अगर उसके अंदर ढूंढते हैं तो उसको भी हैंडसम पेमेंट करते हैं, उससे काम ले रहे हैं।
लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर रखे हुए हैं, जो इसको चला लेगा, उसका क्वालिफिकेशन नहीं पूछते हो। दे गिव यू द मनी एंड दे वांट वर्क। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी स्किल है। डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हमको एक पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी, लेकिन हमारे जो स्किल्स हैं वो हमें टीचर बनाते हैं। स्किल्स से पहले तीन चीजें और होती हैं। वो तीन चीजें क्या क्या हैं वो हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जितने एलिमेंट्स लिखे अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां तक आने के लिए हमें कुछ चीजें और सोचनी पड़ेगी। क्या क्या चीज हमारे अंदर है हमको वो जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है सेल्फ काउंसलिंग। सुना है सेल्फ काउंसलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ काउंसलिंग, जो मैंने यहां लिखा नहीं है, सेल्फ काउंसलिंग क्या होता है? सेल्फ काउंसलिंग बताएगा कोई? सेल्फ काउंसलिंग कोई बताएगा? Self counseling is the practice of examining one's behavior and emotion. It can help one to take more effective control of everyday situation and improve mental health. Means to say, practice of examining one's own behavior and emotions. हमें अपने behavior और अपने emotions को जानने की कोशिश करना है। First of all, this is the self counseling. How can we use the self counseling skills in our free thinking, free association, well-being, and two next things are meditating and journaling. Two words are here, meditating and journaling. Such as self counseling. कई बार ऐसा होता है कि journaling, I will explain journaling. First of all, I want to say सेल्फ काउंसलिंग आप क्या समझते हैं? सेल्फ काउंसलिंग कोई समझा जो मैंने बताया? एनालाइज अवर सेल्फ। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, प्रिंसिपल साहब बहुत बिजी कुछ काम कर रहे हैं, उधर से एक सर आते हैं, उनको बहुत जरूरी बात करनी और वो सर से बात करना चाहते हैं, सर किसी काम में बिजी है। उधर से एक मैम आती है, उनको भी कुछ बहुत जरूरी बात करना है। तीनों लोग बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं। दिस इज अ सिचुएशन। इस सिचुएशन में दो लोगों को प्रिंसिपल से काम है, प्रिंसिपल को अपना कुछ बहुत जरूरी काम है। यहां सेल्फ काउंसलिंग काम आती है। फौरन तीनों काम होने हैं और तीनों ही काम शांति के साथ, इसमें कहीं कोई इरिटेशन नहीं। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स घर में कोई काम कर रहे बैठे हुए, बहुत बिजी है। उनकी वाइफ उनके लिए एक चाय नाश्ता लेके आती है, बहुत देर हो गई काम करते हुए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन वो काम में इतना डूबे हुए हैं कि उन्होंने ला के नाश्ता रखा और कहा प्लीज टेक। तब उन्हें पता लगा कि कुछ कहा है, ही इज कॉल्ड, वो उसको बहुत जोर से डांट देते, आई एम बिजी, डोंट डिस्टर्ब, देयर इज नो नीड, बहुत जोर से हार्श वर्ड में डांट। उनकी वाइफ की कोई गलती थी? उनको सुनना पड़ा। तो ये सेल्फ काउंसलिंग यहां होना जरूरी था। सेल्फ काउंसलिंग का मतलब, मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आई डोंट बिगन इरिटेशन,
मेरे साथ कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, कुछ भी हो हमें गुस्सा नहीं करना है। इसको कहेंगे हम सेल्फ काउंसलिंग। अगर हम सेल्फ काउंसलिंग करके आते हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां लगी हैं, घर में भी लगी हैं, बाहर भी लगी, सब जगह लगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे लड़ाई करने लगेंगे आकर के लोगों से, या अगली बात करने लगेंगे। अभी दूसरी बात मैंने कही थी इसमें, मेडिटेशन। What is the meditation? Everybody is mad on this word, meditation. Some ashrams and some institutions are giving the knowledge to the peoples about the meditation. What is the meditation? Meditation क्या है? सेल्फ काउंसलिंग के बाद आती है मेडिटेशन। अगर हमने अपने आप को तैयार कर रखा है सब चीजों के लिए, तो हम मेडिटेशन करें। What is the meditation? Meditation is a practice that involves techniques to train attention and awareness, helping individuals achieve a mentally clear and emotionally calm state. It has been used for thousands of years and offers numerous benefits, including reducing stress, anxiety, and improving mood and sleep quality. Sleep quality, not quietly, sleep quality. मैंने इसमें 3 चीजें बताई। मेडिटेशन क्यों करते हैं? एक तो हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं, दबाव जो तनाव हमारे ऊपर रहता है, एंग्जाइटी कुछ फिक्र है, कुछ चिंता है जिसमें हम डूबे रहते हैं, उसको दूर करना है। और सबसे बढ़िया बात, इंप्रूविंग आवर मूड, हम अपने मिजाज को सुधार करने की कोशिश करते हैं। स्लीप क्वालिटी, नॉट क्वाइटली, स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी, हम एक अच्छी गुणवत्ता वाली नींद सोते हैं। शांति से नहीं सोना है, शांति से मत सोना। कोई भी सोते हैं आप लोग शांति से? कोई सोता है शांति से? एक बार सोता है बस, दोबारा नहीं उठेगा। क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी होनी चाहिए हमारी, बेस्ट स्लीपिंग। ये हम अपने आप को जानने के लिए कर रहे हैं। भी हमारे अंदर क्या है हमें नहीं पता है, उनको जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन एंड थर्ड वर्ड इज जर्नलिंग। जर्नलिंग इज a word for all of the educated people, for every student, for every teacher, every followers. What is journaling? सॉरी सर, ऑडिबल है सर? ये तो सर का डाइस साइड वाला है। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आनी चाहिए। लास्ट वर्ड अबाउट जर्नलिंग। Journaling, Journaling, journaling. This is new for all of you, I think. Why? Because we are not familiar this. This is the human being quality, journaling. जर्नलिंग क्या है, कोई बता सकता है? किसी ने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो? आज जर्नलिंग का जमाना है, वेबसाइट्स आप देख, जर्नलिज्म के करीबी है ये शब्द। पत्रकारिता, nothing, मीडिया, some change, something change. Journaling. कुछ सीखना, कुछ सिखाना। कुछ और बताना है? Journaling, just say. Journaling is a written record of our thoughts and feelings. Written record of our thoughts and feeling. It is a way to track everyday life and figure out what makes us tick and happy or upset. Journaling is the practice of taking time for yourself to write and reflect on your thoughts, feelings, and life experience. While there are many sessions for how to journal and what to write about. बिल्कुल लिखिए नहीं, अभी सुनिए, सुनने के बाद आप खुद लिख लेंगे। About the beauty of journal writing is you can do it
in your own way and really make it your own attractive and life and changing practice. जर्नलिंग क्या है? कोई 20 इयर्स है, कोई 35 इयर्स है, कोई 40 इयर्स है, कोई 45 इयर्स है, लेकिन जर्नलिंग की एज क्या है हमारी? दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द एज ऑफ जर्नलिंग? जर्नलिंग का मतलब है जब भी आपको समय मिले 24 घंटे, सोने से पहले, जागने के बाद और सोने से पहले, जब भी आपको समय मिले, आप एक डायरी, एक रजिस्टर, कॉपी कुछ भी रखिए अपने पास. उसमें 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस आज लिखिए. ये हमारे साथ हुआ. हम दोनों आ रहे थे, प्रिंसिपल सर और मैं दोनों आ रहे थे. रास्ते में एक आदमी को मधुमक्खियां लगी हुई थी. बहुत लोग जा रहे थे, चले गए. सर ने फौरन रोका, रोक के उसको हेल्प किया, दूसरी जगह उतार दिया. दिस इज ए गुड हैबिट, नॉट, दिस इज ए गुड क्वालिटी. एक अच्छा गुण है, लेकिन ये अच्छा गुण केवल हमने वहां तक किया. अगर हम इसको आज की डेट डाल के अपनी डायरी में लिखे, आज मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब देख के, मैंने उसको बचा करके कुछ राहत महसूस की. उसका नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं, लिख के बंद. नेक्स्ट डे कुछ और अच्छा लगा, वो लिख दिया. कुछ बुरा लगा, वो लिख दिया. दिस इज योर पर्सनल रिकॉर्ड, दिस इज योर जर्नलिंग. आप आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं. रोज हम थॉट्स फॉरवर्ड करते हैं, कहीं से तो आते हैं, कोई तो लिखता है. जिसने वो थॉट लिखा, उसकी वो जर्नलिंग. ऐसे ही आपको भी रोज एक जर्नलिंग करनी है. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी जर्नलिंग एज ओनली 0 days, 0 years, 0 minutes. चाहे हम 40 इयर्स हो, चाहे 50 इयर्स हो, हमको अगर नहीं लिखते हैं, जर्नलिंग एज 0. तो कुछ भी लिखना है, वो आपको पता जब चलेगा, जब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे या कोई उसको पढ़ेगा, तब उसको पता चलेगा. तो ये 3 चीजें बताई शुरू में मैंने आपको. सेल्फ काउंसलिंग, नेक्स्ट मेडिटेशन एंड देन जर्नलिंग. ये 3 चीजें करने के बाद हम कहलाते हैं कि हम मनुष्य हैं. और उसके बाद शुरू होती है हमारी पर्सनैलिटी. जो हम अपनी पर्सनैलिटी इधर देख रहे हैं, ये हमारी सबकी पर्सनैलिटी. सबके अंदर ये सब कुछ है, लेकिन कैसे हमने इसको जागृत करना है, कैसे हमें अपने बाहर निकालना है. और सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबके लिए एक जैसी चीजें नहीं हो सकती. कोई बहुत अच्छे से गा सकता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता है, कोई बहुत अच्छा जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं. किसी के अंदर कोई ना कोई ये पर्सनालिटी एलिमेंट्स होते हैं. लेकिन पर्सनैलिटी एलिमेंट्स को हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें, कैसे हम समझें. मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं. अपने एक स्टूडेंट का ही बताऊंगा, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए भी हैं. वो भी शायद जानते होंगे. मुरलीवाला गांव से एक लड़की हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आई थी. सुनीता नाम था उसका. कई साल पुरानी बात हो गई, ईयर मुझे याद नहीं. और उसका एक पैर जला हुआ था, और शायद मेरे ख्याल में दैट वाज द राइट लेग. तो वो जला हुआ था, और जला इतना ज्यादा जला हुआ था वो कि बेचारी अगर ज्यादा चल लेती थी तो उसमें से ब्लड थोड़ा सा दिखाई देने लगता था. निकलता नहीं था, वो था. अब हमारे स्कूल में रेसेस होती थी, गेम्स होते थे, बच्चे पार्टिसिपेट करते थे. वो बोली, सर मुझे भी दौड़ना है. कितनी बड़ी बात थी. प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि इसको रेस में नहीं ले. पर मैंने कहा दौड़ना चाहती है, दौड़ने दो, मना मत. जब उसको खुद दर्द महसूस होगा, बैठ जाए. फिर ना आप
को कुछ कहना ना मुझे कुछ कहना। लास्ट क्या हुआ, जब भी सेंट मैरिज में 100 मीटर दौड़ हुई, शी गेट द गोल्ड मेडल। और शायद अमनदीप जानते होंगे, है ना, उसे हमेशा 100 मीटर में गोल्ड मेडल मिला। 35 स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, उन स्कूल्स में भी वो दौड़ में गई और उसको मेडल मिला। नाउ वेयर इज शी इज, आज वो दुबई में, एक कंपनी है बिल लादेन के नाम से, उस कंपनी में अब से करीब 2 साल 3 साल पहले वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी। और इसी साल उसको ईयर ऑफ द वुमेन का प्राइज भी मिला है दुबई। तो एक चीज है हमारे, उसे हम कैसे बाहर निकालें, उसके लिए भी आपको मैंने शुरू में एक गीत सुनाया था, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल हमारे लिए हो सकती है, हम कह सकते हैं, लेकिन है नहीं वो मुश्किल। जिस समय कोरोना आया, सब लोग बहुत परेशान हो गए, पूरी दुनिया को चिंता हो गई, सब मर जाएंगे, सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 40-50 लोग बिल्कुल ठीक बैठे, हम भी तो उसी में से आए, हमें तो नहीं छुआ उसने। बट इट इज फैक्ट, कोरोना हम सबके पास से होके गया, उसने हमें भी टच किया, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ था कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे ही हम सब पावर हाउस हैं। एक टीचर तो अपने आप में इतना बड़ा पावर हाउस है कि उसको कंट्रोल करने के लिए 50 ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे तो कम है। क्यों टीचर, क्यों पावर हाउस कहा मैंने? क्योंकि कोई भी टीचर जो भी है वो ट्रेन्ड है, वो जानता है कि किस चीज को कैसे करना है और क्या करना है। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उन दोनों को हम सामने बिठा देते हैं तो दोनों के बैठने का पोस्चर हमें बता देगा कि दोनों में क्या फर्क है। उसी तरह एक टीचर है, टीचर के अंदर सारे स्किल्स मौजूद हैं सब में, लेकिन टीचर उन स्किल्स को कैसे बाहर निकालता है। सबसे पहली बात हम करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, आत्म जागरूकता। हम कितने सेल्फ अवेयर हैं अपने बारे में। कहते हैं ना सेल्फी, सेल्फिश, सेल्फिश कहते हैं ना, ये बहुत सेल्फिश है। तो हमें सेल्फिश नहीं होना, सेल्फ अवेयर होना है, हमें अपने बारे में पता होना है। अब सेल्फ अवेयर क्या है? एबिलिटी टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड how your actions, thought and emotion align with your internal standards. हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमारी भावनाएं हैं, और इनसे हमारा जो आंतरिक स्टैंडर्ड है, आंतरिक स्थिति है, वो क्या बनती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, evaluate themselves objectively। हर चीज का कोई ना कोई विकल्प छांट करके उसके बारे में हम जाने। मैनेज आवर इमोशंस, हमारे जो भी इमोशंस हैं उन्हें मैनेज करके चले। कहीं हंसना है तो वहां जरूर हंसना चाहिए, कहीं गुस्सा करना है तो गुस्सा भी करिए, और कहीं बहुत खुश होना है तो खुश भी हो जाइएगा। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपेशन, हमारे अंदर ये सारे गुण हैं। हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत है। सेल्फ कंपेशन, व्हाट इज द कंपेशन? कंपेशन क्या होता है, कोई बताएगा? कंपेशन, शाइलक और पोर्शिया का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है।
पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने इंटर में पढ़ा होगा, कुछ ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कुछ ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ mercy is the quality of justice. हाँ, mercy is the quality of justice. न्याय जो होता है वो पूरी मर्सी के साथ ही होता है। किसी पर दया, किसी पर करुणा। करुणा क्या? दिल रो रहा है, परेशान है, लेकिन उसका अच्छा करना है। तो वो जो सिचुएशन है वो हमें जगानी है। सेल्फ अवेयरनेस के सबसे पहली चीज हमने बताई आपको कि आपको कंपेशियंस ओपन करना है, करुणा हमारे मन में होना चाहिए। हम चाह रहे हैं, अभी सर का एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि उसको मधुमक्खियां लगी थी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपेशियन, करुणा। दर्द से छटपड़ा रहा है, दुखी है वो, बहुत लोग चले गए, जा रहे हैं, लेकिन एक है जो देखता है। करुणा आपके अंदर आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रोज शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो, रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। फीडबैक, और अपना फीडबैक भी लो। यही नहीं होना चाहिए कि हमने इतना कर दिया और इतना छोड़ दिया। हेल्प इंडिविजुअल्स, सबकी मदद करो, खुद करो, किसी का इंतजार नहीं करना है। अगर ये सब कुछ करते हो तो जजमेंट करने की क्षमता आपके अंदर आती है, आप जजमेंट ले सकते हो। कल्टीवेट सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ, as it allows individuals to recognize opportunities that align with their values and goals. अपने अंदर आत्म जागरूकता जगानी है। कर सकते हैं? कैसे करेंगे? आज तक तो किया नहीं, कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे कोशिश। कोशिश तो करने से कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम करेंगे। हम कर लेंगे। एग्जैक्टली, विथ कॉन्फिडेंस हम कर लेंगे। ट्राई किसके लिए होता है? चाहे फेल हो जाओ, ट्राई वर्ड यूज नहीं करना। विथ कॉन्फिडेंस हम इसको करेंगे। सॉरी सर, आपको थोड़ा सा आराम से मिल जाएगा। ये ट्राई का मैं बोलना चाहता हूँ, एक वर्कशॉप ही है, ये चेयर के बीच में आप अपना हाँ हाँ, कोई बात। पानी मंगा दीजिए, चेयर के बीच में। अब एक डेमो है, आप देखिएगा, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू स्टैंड, ट्राई टू स्टैंड, आपको मेरे को ना ट्राई टू स्टैंड, अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई टू सिट, ट्राई टू सिट, ट्राई टू सिट, ट्राई करो सिट, I can sit but not to try. Yes. ओके, ट्राई नहीं करना होता, यही सर कह रहे हैं, और ये ना डेमो के बिना नहीं समझ आते। तो ये चीज है, हर देना है, हर लेंगे, हम कैसे ट्राई करेंगे? ट्राई थोड़ी करना है। वेरी गुड। तो अभी हमने अपने अंदर जो चीज है उसके लिए जागरूक होना है। अगर हम सेल्फ अवेयरनेस कर लेते हैं तो हमारी पहली क्वालिटी पर्सनालिटी की जाग जाती है। दूसरी चीज आती है लाइकेबल पर्सनालिटी। लाइकेबल पर्सनालिटी, दिलकश व्यक्तित्व, यानी सबको पसंद आने वाली चीज। एक लाइकेबल पर्सनालिटी कैसे बनेगी? देखिए, इस संसार में ईश्वर ने हमें भेजा है, जितनी भी चीजें हैं, पक्षी है, टेबल है, फर्श है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, ईश्वर की एक साकार संरचना।
वो सुंदर है, उसे हम सुंदर कहते हैं। जो कुछ भी बनाया उसे सुंदर कहते हैं। सुंदर क्या है, कोई बताएगा? कोई भी? सुंदर क्या है जिसे हम सुंदर समझते हैं? जो हमें अच्छा लगे। मुझे आपका जवाब अच्छा लगा। सुंदर, हम कैसे महसूस करें कि ये चीज सुंदर है? आपने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सावन का महीना चल रहा है तो सत्यम शिवम सुंदरम, इसका मतलब क्या हुआ? अरे पीछे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सच है वही शिव है। और शिव क्या है? सुंदर क्या है? ईश्वर का नाम। जिसके अंदर ईश्वर का अंश है वह सुंदर है। हम उसे ही सुंदर मानेंगे जो ईश्वर ने बनाया है। ठीक है ना? हम कुछ बना करके रखते हैं, कुछ देर के लिए लोग देखते हैं, उसके बाद उसकी तरफ कोई आता नहीं। लेकिन आपको ईश्वर ने बनाया है, आपको पूरे जीवन लोग देखते हैं, और कहीं कहीं तो जीवन के बाद जो फोटो लगाया वो भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है, आप सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को सब देखते हैं। ईश्वर का अंश ही सुंदरता है, इसको ध्यान दें। तो हमारी पर्सनैलिटी दिलकश कैसे हो, कैसे हम सबके बीच में लाइकेबल पर्सन्स के रूप में जाने जाएंगे, इस चीज को आप नोट जरूर करना। जब मैं बताऊंगा पूरा मत लिखना, जो चीज आपको लिखनी है। दिलकश को हर दिल अजीज भी हर दिल अजीज कह सकते हैं, जो सबको पसंद आए, एकदम एकदम जैसे लाइकेबल। लाइकेबल। लाइकेबल इंग्लिश वर्ड यूज किया उसके लिए, है ना? Having nice, pleasant and agreeable personality is called likable personality. Cooperative, friendly and socially accepted by others. How can we make our personality likable? First, be used. Be funny. This is the first element of likable personality. Be funny. Second one, be a good listener. Write these points especially. Be funny. Be a good listener. Don't judge. एकदम से कोई जजमेंट नहीं लेना। Be authentic. जो कुछ भी है बिल्कुल सही होना है, हमारे साथ सही है, बिल्कुल हम जो कह रहे हैं सही है। Show people that you like them. किसी के बीच में जाओ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको पसंद नहीं करता। जितने लोग हैं सबको आप पसंद करने वाले लगने चाहिए। स्माइल, दिस इज द पॉइंट। स्माइल लाइकेबल पर्सनालिटी के लिए जरूरी है फेस पर स्माइल भी हो। अभी आपने वो शुरू में गीत सुना था, सारे शब्द अगर आपको याद हो गए तो आप अपनी पर्सनालिटी खुद ही डेवलप कर लेंगे। मैंने कहा था कि शब्दों पर ध्यान देना है। बी हम्बल, बहुत विनम्रता से बात करिए। ये एक सब टीचर के गुण हैं, एक टीचर के अंदर ये चीज होनी चाहिए। कीप योर प्रोमिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। कीप योर प्रोमिसेस। आपका प्रॉमिस किसके साथ होता है? स्टूडेंट्स के साथ। एंड स्टूडेंट्स हु दे आर लाइक गॉड्स, दे आर इनोसेंट। द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास nursery to 12th, all they are innocent. सब के सब बहुत मासूम है, इसीलिए आपके पास है, और उनसे किया गया वायदा कभी नहीं तोड़ना। एक एग्जांपल देते, छोटी क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं छोटी क्लास के बच्चे,
ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। टीचर क्लास में गई, कोई काम उनको दे दिया और देने के बाद कि इसको घर से करके लाना है, और जो कल इसको करके लाएगा उसको मैं एक स्टार दे दूं। तो एक टीचर ने क्लास में जाकर के वर्क दे दिया और उसके बाद पता चला कि दूसरी क्लास में गई, तीसरी क्लास में गई, नेक्स्ट डे आते आते उस क्लास में जाते जाते कुछ ऐसी सरकमटेंसेस आ गई कि टीचर भूल गई। क्लास में गई, जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। वो बच्चे जो करके लाए थे, जिन्हें स्टार चाहिए था, वो बार बार अपनी कॉपी को निकालते हैं, टेबल पर रखते हैं। मैम आगे उधर से गुस्से में छुपा लिया, ठीक है, छुपा लिया उसको। लेकिन अगर वो चाहे देखे, फौरन याद आए क्लास में जाते ही कि मैंने क्या वायदा किया था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क? कितने बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया? मैंने किया, मैंने किया, मैं अच्छे से बना के लाया, मैंने और अच्छे से लाया। फौरन सबको स्टार, किसी को 2 स्टार, किसी को 3 स्टार। स्टार तो देना ही है, चाहे उसने कम काम किया चाहे ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि आपका वो स्टार जो है उस बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है जो उसने कल घर में जाके दिखाना है। दीदी आपने मुझे हेल्प किया था, देखो मैम ने 3 स्टार दे दिया। मम्मी आपने मुझे हेल्प किया था, मुझे देखो 2 स्टार मिल गया, मुझे स्टार मिला है, मैं क्लास में बहुत अच्छा हूं। ये सारी चीजें एक टीचर के लिए, तभी हमारी पर्सनैलिटी लाइकेबल होगी जब हम सबके साथ इन सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप करेंगे। अभी मेरे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको जब हमने कितने साल तक पढ़ाया होगा और उस दौरान क्या क्या चीजें इनके साथ रही होंगी। इन्होंने सबसे ज्यादा डांट भी मुझसे खाई होगी, कभी कभी पिटाई भी। प्लीज रेज योर हैंड जो सबके स्टूडेंट रहे, रेज योर हैंड। देखो, 3 है। हाँ 3। तो डांट भी खाई होगी आज हम सारे और इन्हें इतना प्यार भी मिला होगा, शायद कहीं नहीं मिला होगा। यहां तक भी था कि अगर मेरी क्लास में किसी बच्चे को किसी टीचर ने डांट दिया तो मुझे उस बात पर बड़ा दुख होता था, और मैं ये कहता था कि किसी से डांट नहीं खानी, उसके लिए तैयार रहो कि डांट कोई डांटे ही ना, तो किसी भी तरह से मुझसे करो जो बात करनी है। मैं लड़ जाता था इनके लिए, प्रिंसिपल से लड़ जाता था किसी बात के लिए। नहीं, मेरी क्लास के बच्चे बहुत बढ़िया है। बैठे हुए हैं, रितु बैठी हुई बता सकती है इस चीज को। मैंने कितना ही डांट लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन बाहर वाले से डांट नहीं खानी। तो एक पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी, टीचर्स की एक पर्सनैलिटी है। एक और चीज है, कुछ कहना है मन? बिल्कुल कह सकते हो। देखिए हमारा जो सेशन चल रहा है, यही नहीं कि मैं कुछ कहूंगा तो आप ही सुनेंगे बस, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं। आपको मुझे भी बताना चाहिए। ये जितनी चीजें अभी आई थी लाइकेबल पर्सनालिटी में, क्या हम इनको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं या करते हैं, इस पर 2 लोग बताएंगे, 3 लोग बताएंगे। एक इस स्ट्रीम से, एक इससे और एक इधर से। कोई भी डिसाइड करो कौन बता रहा है, मैं सुनना चाहता हूँ। ये एक क्लास में भी करना है, वन वे ट्रैफिक जाता है, हम दूसरे बच्चों को सुनते हैं, कभी बच्चों से बात करोगे ना, और एक बच्चा है लाइक योर पर्सनालिटी, सर ने समझा दिया। एक इंटरैक्टिव सेशन काफी सही, इधर से कोई भी जना बोल, एक इस स्ट्रीम में से, एक इधर से और एक इधर से। कैसे बनना है, हर दिन अजीज कैसे बनना मैंने तो आपको लैंग्वेज से भी बाउंड नहीं किया है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो, और पंजाबी भी बोलो, सर बैठे हुए। है। अमन मन में बताइए, कुछ भी बताइए जो आपको समझ में आता। देखिए इस पे भी मैं भी इस मसला बड़ा बोलने के, फिर वही कोशिश ट्राई, कोशिश तो मुझे बता आपने जैसे आपने बोला कि आपकी क्लास को अगर कोई डांटता था तो आपको बुरा लगता था, सेम ऐसे मेरे को भी है। जब मेरी क्लास को कोई टीचर और डांटता है और बच्चे मुझे बताते हैं तो मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ। फिर मैं उस तरह से देखती हूँ कि किस वजह से डांटा, फिर मैं अपने हिसाब से उनको समझाती हूँ। और उधर से उस स्ट्रीम में से कोई भी। यस कमल सर, आप कोई कैसे कराते, कैसे बनते भर देते बच्चों को जिस तरह से वो समझ रहे हैं
समझाई। और बहुत कम बच्चे से जैसे आप बता रहे हैं कि आजकल मैं हायर क्लासेस में आता हूँ, हायर क्लासेस तो मुझे लगता है कि आराम से सीखने वाले तो 20% में वो बच्चे जिन्हें ये पसंद है कि करना है। सॉरी सर, हमें सीखने की बात ही नहीं करनी है। हम कैसे हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमें नॉट स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम हमारी पर्सनैलिटी कैसे दिलकश हो, बच्चे हमें पसंद करना शुरू कर दें। या ये किसी टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कि पसंद आए। वो तो मेथड्स हो गया। हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो, हम क्लासरूम में आ रहे हैं, बच्चों को एकदम पता लग गया कि चौहान सर आ रहे हैं और हर एक के चेहरे पर खुशी आ गई। बेटे, बिहेवियर क्या करेंगे? सर बच्चों को कुछ चीजें फेवरेट बन जाते हैं कि मतलब हमें अपने टॉपिक को ऐसे इंटरेस्टिंग बात बताते वो नहीं चाहिए। अपनी पर्सनालिटी को दिल रुबा दिल फनी क्लास में ऐसा फनी होना। वेरी गुड, हंसो हंसाओ बिल्कुल होना चाहिए। रितु बताएगा इधर से, मैं पूछूं रितु से क्या कहना है। सर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी यहाँ मैं हायर क्लासेस में नहीं, मतलब जूनियर सेशन में पढ़ा रही हूँ। क्लास की बातें नहीं हो रही। सर मेरा सुनिए ना कॉपी में। सर स्टार्टिंग में मैं आई थी, बच्चों को लगता था कि मैम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर हमारे हमें जो वर्क चाहिए हम नहीं करेंगे तो मतलब हो जाएगा, मैम पनिश करेंगी या कुछ भी है। स्टार्टिंग में हुआ, बच्चों को लगा, फिर धीरे धीरे मैंने भी कुछ चीजें समझी कि बच्चे किस तरीके से सुनना चाह रहे हैं मुझे। और कई बार ऐसा हो कि मुझे सर को बुलाना पड़ा कि सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे है, बट उसके बाद मैंने अपने आप में चेंजेस किए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अब मुझे सर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ वो चेंजेस जान रहे क्या चेंजेस आया आपकी पर्सनैलिटी में, क्या चेंज आया? सर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब हो चुका है कि बच्चों को मारना नहीं है, तो मैंने बी हम्बल, बी हम्बल, ये चीज बस ये है हम्बल। बट ठीक है, अभी आपसे देखिए बात हो रही थी, मैंने कुछ चीजें बताई तो यस से केवल हम्बलनेस से बच्चे सर एक सही वे में जा सकते हैं। अभी बताएंगे इस चीज का, आपको मिलेगा जवाब बिल्कुल। ये हमारे टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे और आप देखिएगा सारी चीज क्लियर हो जाएगी एकदम। एक्चुअली में क्या है कि अब वो जमाना नहीं है, ये बात मैं कहता हूँ। कई बार टीचर जो है मेरा साथ नहीं देते, मैनेजमेंट मेरे साथ आ जाता है। कई बातें ऐसी होंगी कि जहाँ मैनेजमेंट मेरा साथ नहीं देगा, टीचर साथ देंगे। आप सब टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ। जितने भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आज, अगर हम उन्हें एक महीने ना पढ़ाएं, ध्यान से सुनना इस बात, एक महीने हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल ना पढ़ाएं, उन्हें एक असेसमेंट दे कि ये आपका असेसमेंट है और इतनी डेट में आपका इसका एग्जाम हम लेंगे, एग्जाम आपको लेना है। सपोज आपने एक महीने नहीं पढ़ाया, उन्हें कुछ काम दिया कि इसका आपका एग्जाम होगा, और जब आप एग्जाम लेते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं, उन्हें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। कहां से आए मार्क्स? यानी मेरा ये दावा कि मैं एक टीचर हूं, अगर मैं पढ़ाऊंगा तभी बच्चा पढ़ेगा। बताइए, मैंने ही उसे असेसमेंट दिया, मैं ही उसकी कॉपी चेक करके मार्क्स दे रहा हूं, मैंने पढ़ाया ही नहीं, कहां से आए मार्क्स? मेरी बिगनिंग में एक बात कही थी मैंने कि हमारी एक डिग्री, वो सब एक पेपर वर्क है। उन दिनों का पेपर वर्क है जब कहीं स्कूल नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से 15-20 गांव में एक छोटा स्कूल खुलता था और वहां एक टीचर पढ़ाने के लिए जाया करता था, और पढ़ने वाले भी 5 या 6 होते थे। ये उस समय की रिक्वायरमेंट थी। आज हर घर में मोबाइल है, हर घर में आज स्क्रीन है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, भाई बहन पढ़े लिखे हैं। तो जब हम बच्चों से कुछ उम्मीद करते हैं तो वो ऑलरेडी करके लाते हैं इस चीज को। शायद अपनी बहन से मदद ली, चाहे मम्मी से मदद ली, पापा से मदद ली, किसी से भी ली, करके लाए। करके लाने के बाद हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। जो सही था उस पर हमने मार्क्स दे दिए,
जो गलत था उस पर मार्क्स नहीं दे सकते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, कोई स्टूडेंट उसमें 60% भी लाया, कोई स्टूडेंट उसमें 40% भी लाया, कोई 30% भी लाया, कुछ ना कुछ परसेंटेज लाया, तो इसका मतलब जो 60% लाया उसके लिए टीचर ओनली 30% गाइडेंस है। 90 प्लस के लिए कोई बच्चा 90 प्लस लाता है तो टीचर उस बच्चे के लिए ओनली 30 to 35% ओनली, नॉट 90%, नॉट 100%। और कोई 40% लाया था बिना पढ़ाए, और जब आपने उसको पढ़ा दिया, एग्जाम में वो 80% लाया, यू आर ओनली 40% टीचर, नॉट 100%। तो हमें अपने आप को 100% करना है। 100% कैसे करेंगे? अपनी पर्सनैलिटी से। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले फैमिलीज के लोग, ऐसे भी लोग हैं कि जो शायद अपने बच्चे को कार से छोड़ने आते हैं, अपने बच्चे के लिए 10,000 5,000 रुपए महीने का ट्यूशन भी रख देते हैं। क्यों भेजते हैं स्कूल? टीचर के पास क्यों भेजते हैं उसको? वो तो वहां 15-20 हजार रुपए का एक टीचर अपने घर में रख के उसको पढ़ा दे। स्कूल में क्यों भेजते हैं? स्कूल में इसलिए भेजते हैं, यहां आपकी थोड़ी सी बढ़ाई होगी। हालांकि बढ़ाई इसमें भी है कि आप टीचर हैं, चाहे हम कितने ही परसेंट करके हैं। एक सबसे बड़ी बात, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ टोटल? 500 500 स्टूडेंट्स हैं, ओनली टीचर्स 32। आप 32 किसी भी हालत में 500 स्टूडेंट्स को अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन एक आप हैं जो एक स्टूडेंट कोई भी आपको लाइक करता है कि ये टीचर मेरी बात बहुत अच्छे से सुनता है, ये टीचर मुझे कभी नहीं डांटता, ये टीचर मुझसे मुस्कुरा के बात करती है, ये टीचर मुझसे खुश होकर बात करती है, वो आपको अपना आइडियल बनाता है। चाहे आप मैथ्स हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप सोशल स्टडीज हो, चाहे लैंग्वेज हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपसे वो उस सब्जेक्ट में आगे निकलने की कोशिश करेगा। और एक बच्चा एक टीचर को चुन सकता है 500 में से अपनी लाइफ बनाने के लिए। आप तो 500 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा एक टीचर को जरूर चुन लेता है। कोई ना कोई टीचर उनका लविंग टीचर बन जाता है। वो क्वालिटी वो आपके अंदर है, उसको कैसे हम बच्चों के सामने प्रूव करें? वही है, बी हम्बल, बी स्माइल, डोंट जज, बी ऑथेंटिक। अभी आपका सर का जवाब है बी ऑथेंटिक। बच्चे को भी ऑथेंटिक बनना है। ऑथेंटिक कैसे बनेगा? जब टीचर खुद ऑथेंटिक है, अपनी बात उसकी सही है तो वो सही बात उसको बताएगा और वो सही बात सीखेगा। बड़े बच्चों की बात यही आती है। बड़े बच्चे क्या होते हैं? बड़े बच्चों को एक क्वेश्चन दे दीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि बड़े लोगों के बड़े एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, सबका IQ अलग अलग होता है। डॉक्टर हरिश्चंद्र माथुर का नाम किसी ने सुना? डॉक्टर हरिश्चंद्र माथुर शायद नहीं सुना हो। बिहार के एक बहुत गरीब परिवार में बच्चा था, और इंडिया का एक ऐसा मैथमेटिशियन था कि जब उसने 12th क्लास पास किया और पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो जो टीचर क्लास में आकर के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता था, उसको वो भी सॉल्व करता था और एक दूसरे तरीके से नया मेथड दे देता। और जो टीचर था, वो टीचर कभी उसे नहीं डांटता था। टीचर कहता था आपने बहुत अच्छा किया है, और कुछ कर सकते हो तो बताओ। होते होते बात प्रिंसिपल तक गई, प्रिंसिपल से बात VC तक गई, VC तक गई। VC ने उससे बुलाया, पूछा, मैथ के टीचर्स ने पूछा, ही इज द ओनली वन हीरो, 1 साल में मास्टर डिग्री लेने वाला स्टूडेंट, 1 साल में।
जो बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो 1 साल में उस लेवल पे पहुंच गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टीचर से ही होती है। कोई बच्चा कुछ करके लाया, हमने डांट दिया, चाहे वो गलत है या सही है। फर्स्ट, डोंट जज। सबसे पहले हमें जजमेंट लेना ही नहीं, जो करके लाया उसको देखना है, मुस्कुरा के देखो, चाहे गलत है, चाहे सही है, चाहे गलत है, मजाक भी करो उससे। और ऑथेंटिक, 2+2 आपने 5 लिखा, दिस इज नॉट ऑथेंटिक। से नॉट ऑथेंटिक, डोंट से यू आर रॉन्ग। स्टूडेंट को रॉन्ग नहीं बताना, ऑथेंटिक नहीं है ये चीज, हमको इसको 2+2 4 ही लिखना है। ये सारी चीजें हम उनको देते जाएंगे तो हमारी पर्सनालिटी खुद लाइकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है, लेकिन सब में होती है, सबके पास है ये लेडीज एंड जेंट्स सबके पास है। कुछ दिखा सकते हैं उसको, कुछ नहीं दिखा सकते। अपने घर की परिस्थितियों से निकल के आते हैं, अपने घर में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो हमारी वर्सेटाइल पर्सनालिटी कहलाती है। क्या है वर्सेटाइल पर्सनालिटी, पहले इसको समझ लीजिए, थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ के अब पहले आपको बताऊं। एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल इन वेरियस सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसे एडॉप्ट करना है, और उस सिचुएशन के साथ हमें फ्लेक्सिबल भी होना है। चैलेंजिंग अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस केम। Versatile terms means to say variable or inconstant or challengeable. Versatile refers to the quality of being able to change easily. Versatile का मतलब ये होता है चाहे कितनी भी चैलेंजिंग पर्सनालिटी हो। लेडीज और जेंट्स दोनों ही हैं, मैरिड अनमैरिड यहाँ सभी हैं, तो मैं मैरिड की बात करता हूँ। सबको पता है कि मेरा हस्बैंड कितनी इनकम लेके आता है, कितना कमा लेता है। बच्चे हैं, बच्चों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मम्मी कहती है सीधे कि आज मुझे ये सामान ला के दीजिए। उनको पता है मेरी जेब में 100 रुपीज हैं और ये मुझे बिल 700 का दे दिया। तो ये सरकमस्टेंसेस आती हैं, चैलेंजेबल है, आप मना नहीं कर सकते। आप करके कैसे लाओगे? उस सिचुएशन को जब हम अडॉप्ट करते हैं, उसे जब हम स्वीकार करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। 700 का बिल है, चेक द फर्स्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्नी से नहीं कह पाओगे कि सब नहीं लाऊंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो ला के दीजिए। जिसको वो मिल गया, उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो वो सिचुएशंस, अब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करेंगे इन चीजों की, तो वो भी हमारे सामने आएंगी। हमने कुछ नाम सुने, सरोजिनी नायडू गवर्नर रही, पता होगा, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। और महात्मा गांधी के साथ साल्ट सत्याग्रह में शामिल हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपने नाम सुना, उनके बारे में कुछ विशेष सुना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार के रहने वाले थे। जब 10th क्लास का एग्जाम था, शायद मैंने अपनी क्लास में बच्चों को तो बताते ही हैं, जब 10th क्लास का एग्जाम था तो पढ़ने के लिए शायद लालटेन में इतना तेल नहीं होता, घर के पास एक लैंप पोस्ट था,
उसके नीचे बैठ के पढ़ते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात हो रही थी। और उन दिनों का पैटर्न ये था, अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, 10 और 14 क्वेश्चंस आते थे, आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे बस। जब 10th का एग्जाम हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना एग्जाम लिखा तो उन्हें 10 के 10 प्रश्न आते थे। उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिए। सॉल्व करके एक नोट लिख दिया, ये उन दिनों की बात कर रहा हूं, आज के पैटर्न की। उन्होंने लिख दिया, प्लीज चेक एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी 5 जांच लो। अब जब वो चेकिंग हुई तो चेकिंग में सारे हम टीचर्स बैठे हुए हैं। हम खुश कब होते हैं? जब आंसर हमारे जैसा हो, जब आंसर ऐसा हो कि जो हमें पसंद आए, कि ऐसा आंसर लिखना चाहिए था, इसने ऐसा लिखा। और रियली वो 10 के 10 आंसर टीचर को अच्छे लग गए, 100% मार्क्स मिले। और साथ ही एक लाइन लिखी गई, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो वो भी किसी एक टीचर से ही आया ना, किसी टीचर का ही इंस्पिरेशन था, किसी टीचर ने ही पढ़ाया था। ये तो सत्य है कि जब तक हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे वो 100% नहीं पढ़ सकता है। और वो जो कुछ भी पढ़ता है, एक स्टूडेंट बिल्कुल कोरी किताब होती है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता। क्या है कि जब वो अपनी बहन से सीखता है, अपने पापा से सीखता है, किसी से भी सीखता है, बाहरी लोगों से सीख करके जब वो आता है, तब ऐसी पोजीशन में उस टीचर को बहुत खुशी होती है कि मैंने इससे कहा था ये करके लाओ और ये करके ले आए। टीचर खुश है, ये करके लाया है और फिर टीचर ने उसमें कुछ सुधार की। अब मुझे अच्छा लगा, वो करना है, टीचर को सुधार तो करना ही है। टीचर अगर सुधार नहीं करेगा वो 90 प्लस कभी नहीं हो सकता। 90 प्लस करने के लिए टीचर का सुधार जरूरी है। अच्छा ठीक है, इसी सेशन को आगे कंटिन्यू। एडाप्टिंग टू अनफैमिलियर सिचुएशन, दिस वन। अनफैमिलियर सिचुएशंस जब आ जाती हैं तो उनको आसानी से कैसे हम अडॉप्ट करें, कैसे हम उनको, अच्छा ये पूछिए नहीं, फॉर्मल क्लास। सबसे पहले एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, ये बच्चों के लिए नहीं है कुछ भी, हम टीचर्स के लिए। एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कर्वे बॉल। कर्वे बॉल किसी ने वर्ड सुना, पढ़ा? कर्वे बॉल, CURVEBALL, कर्वे बॉल, CURVEBALL, कर्वे बॉल। कर्वे बॉल, कर्व नहीं बोला, कर्वे बॉल, कर्वे बॉल। आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कर्व बॉल, कर्वे बॉल। कर्वे बॉल एक अप्रत्याशित घटना, एक बिल्कुल किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी और वो घटना घट जाए, उसे हमें एक्सेप्ट करना। टीचर को ऐसा होना पड़े। Saying no, it may seem surprising, but adaptable people are often quite good at saying no. जो किसी भी सिचुएशन को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, वो कभी नो नहीं कहते, किसी भी चीज के लिए ना नहीं करेंगे। अभी प्रिंसिपल सर ने बुलाया अपने रूम में किसी टीचर को, चाहे वो संस्कृत पढ़ाने वाली टीचर है, उनसे कह दिया आज 9th क्लास में जाइए, आपको मैथ पढ़ाना। संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर को आज मैथ के टीचर नहीं आए हैं
प्रिंसिपल सर ने कहा आप 9th क्लास में जाइए और मैथ्स पढ़ाइए, क्या जवाब होगा टीचर का? बताइए, बिल्कुल फ्री होके बताइए, कोई डरने की बात नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। सर आप ही बताएं। इसलिए हमने तो मैथमेटिक्स में पढ़ाई है, सुनना है कि 9th लेवल 9th में भेज दिया ना। ठीक है, अब 9th में जाने के लिए जूनियर स्टैंडर्ड एक मिनट, सर एक मिनट। सर मैंने आपको कहा कि आप 8वीं 6वीं साइंस पढ़ा दीजिए, आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब बताइए सर, अपना जवाब। हाँ बैठिए बैठिए सर, हाँ बैठिए सर। हाँ अब मैं इसी पे कर रहा हूँ, बैठिए सर। एडाप्टेबल पीपल आर ऑफन क्वाइट गुड एट सेइंग नो। नहीं कहना है नो, यस आई विल गो इन क्लास 6 सर, साइंस टॉपिक, विच टॉपिक्स आई विल टेल देयर। टॉपिक प्रिंसिपल साहब आप बताओ क्या पढ़ाना है? हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? देन प्रिंसिपल विल से use three principles of this like this, help from this book. आप अगर सीधे ना बोल गए प्रिंसिपल की टारगेट पे आ गए, आपने यस बोल दिया प्रिंसिपल आपके टारगेट पे आ गए। तो टीचर को हमेशा पॉजिटिव होना, मैं पहले ही कहा था कई चीजें ऐसी होंगी जो टीचर को लगेंगी कि हमारे फेवर में नहीं हो रही, कई ऐसी होंगी जो मैनेजमेंट को लगेंगी हमारे फेवर में नहीं हो रही। काम जिसको करवाना है उसको पता है कि मुझे ये काम कैसे करवाना है, मुझे करने वाला चाहिए। अगर आप करने वाले हैं आप यस बोल दीजिए, उनको भी पता है ये हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ये कैसे पढ़ाएगा जाकर के फिजिक्स। लेकिन जब आपने यस बोल दिया अब जिम्मेदारी उनकी है। आपने बोला मुझे पढ़ाने के लिए, मैंने नहीं कहा मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा जाकर के, आपने बोला मैं जा रहा हूं बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, ठीक है आप इसको ये बता दीजिए, इसको ऐसे बता दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अनफैमिलियर सिचुएशन को एडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें कभी नो नहीं बोलना, पहली चीज। कल्टीवेटिंग ए ग्रोथ माइंडसेट, अपना माइंडसेट बिल्कुल हमें ग्रोथ वाला रखना है, कुछ सीखने के लिए हमें तैयार रहना है। डिस्प्लेइंग इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको भी हमें सामने लाना होगा। कीपिंग एन ओपन माइंड, बिल्कुल ओपन माइंड। अभी किसी टीचर ने दूसरे टीचर को डांट दिया किसी बात पे आपस में, बिल्कुल ओपन माइंड होना चाहिए। उसने डांट दिया, उसको एज रिवेंज कभी नहीं लेना, ठीक है। एक जगह मैंने पढ़ा कि एक आदमी को गुस्सा आ रहा था, जैसे गुस्सा आ रहा था तो दूसरे आदमी से पूछा भाई इसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फ्राइड। उसने लिखा ये पागल हो गया है कुछ देर के लिए, इसलिए मैं इसकी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहा हूं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तब बात कर ले, बात खत्म। तो सबसे पहले क्या है, कीपिंग एन ओपन माइंड, बिल्कुल खुला दिमाग। प्रैक्टिसिंग पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए टीचर के पास। छोटी क्लासेस के टीचर्स के पास तो बहुत ज्यादा पेशेंस होना, क्योंकि छोटी क्लास में जो टीचर है, क्लास 5th तक जो टीचर है, जो भी क्लास में टीचर है, वो उस बच्चे के लिए उसका सेकंड पेरेंट है। वो एक बार को अपने घर जाकर के मम्मी पापा की बात नहीं मानेगा, मेरी मैम ने ये बताया था, सर ने ये बताया था, ये सही है ऐसे ही करना है। तो वहां सिचुएशन क्या आ जाती है कि टीचर पढ़ा रहा है, बता रहा है, कुछ डायरी में लिख रहा है, उनकी किसी कॉपी में लिख रहा है, दूसरा उठ के आया मुझको बाहर जा, एक और उठ के आया क्या मैं अपनी पेंसिल बना लूं, बना भी रहा है। एक उठ के आया मेरी किताब में ऐसे, 4 हो गए एक साथ। अब चारों को कैसे करना है मेंटेन, डांट देंगे, पीट देंगे, भगा देंगे? नहीं, क्योंकि वो तो आपको मम्मी या पापा समझ के आया है, अभी उसको इस बात की समझ नहीं है। उसे पता है कि जो ये बताते हैं वो अच्छा होता है, वही सही होता है। इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मैं पेंसिल बना लूं, तो बना खुद भी रहा है। वही टीचर के अंदर ये चीज
होनी है। पेशेंस, पेशेंस हर टीचर के अंदर होना चाहिए, और टीचर के अंदर क्या, हर आदमी के अंदर होना चाहिए। जिसके भी अंदर है वो हर जगह सक्सेस है। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को लेना चाहिए। जिम्मेदारी से बचने का नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी लेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। स्कूल में अक्सर क्या हम लोग भी देखते थे, टीचिंग में, स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, प्रिंसिपल ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब कोई कोई टीचर चुप बैठा है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। चलो ठीक हो गया, उसका नाम नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ, ओवरऑल डिसिप्लिन जिन जिन का नाम नहीं था। यानी जो जिम्मेदारी दी जा रही थी उस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, नहीं तो कोई ऐसी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा जिसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी होंगी। और मेंटेनिंग ए पॉजिटिव आउटलुक, बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई, नेगेटिव नहीं दिखाई देना। एक और टीचर्स के लिए है बेटर रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ बेटर रिलेशनशिप कैसी हो और कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शिष्य संबंध, हालांकि जो उस समय की किताबों में और मैनेजमेंट में था वो सारा का सारा आज बदल चुका है। आज बहुत सारे एक्ट आ गए जिनके भी चर्चा भी हो रही थी। कोई टीचर दुनिया में ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट को गलत रास्ते पे लेके जाए या किसी स्टूडेंट का हैरेसमेंट करे। उसको अगर वो डांटता भी है तो वो जरूर किसी अच्छाई के लिए डांटता है। उसको अगर कहीं वो पीटता भी है तो उसकी अच्छाई के लिए पीटता है। शायद उस टीचर को 5 साल के बाद याद भी नहीं होगा कि मैंने इस बच्चे को ऐसे ये बात बताई, और बच्चे को 25 साल के बाद भी याद होगा कि इस टीचर ने मेरे साथ ऐसे किया। यही सब चीजें एक्ट में आ गई। तो सबसे पहले केयर अबाउट योर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप का स्टूडेंट्स के साथ, केयर अबाउट योर स्टूडेंट्स। ग्रीट योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को जाके ग्रीट भी करो जब मौका मिले। यूज देयर नेम्स, स्टूडेंट्स के नाम लो। शो इक्वालिटी, बिलीव इन देम, बच्चों में भरोसा भी रखो, उनकी बात को मानने की भी कोशिश करो। यही नहीं सब कुछ हमें अपनी मनमानी। कनेक्ट विद देम, उनके साथ जुड़ना भी है। हैव वन ऑन वन कॉन्फ्रेंस विद देम, एक एक करके उन सब के साथ बातचीत करो। राइट अबाउट देम, अपनी एक डायरी रखो, उसमें उन बच्चों के बारे में लिख के रखो। उन्हें मत बताओ, ये आपको पता है, उनके बारे में लिख के रखो। शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम, अपने अच्छे एक्सपीरियंस जो भी हैं उनके साथ बांटो। गिव देम देयर चॉइस, और उनकी जो भी चॉइस है उससे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनने के लिए आया है, कोई वकील बनना चाहता है, वो सारी चीजें उसमें आनी चाहिए टीचर के साथ। इंप्रूव कॉन्फिडेंस लेवल, एक टीचर अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करेगा। स्टॉप टू कंपेयर टू अदर्स, कोई भी टीचर अपने आप को किसी दूसरे टीचर से कंपेयर ना करे। एग्जाम्पल, मैडम एक्स बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाती है, आपको भी ऐसे पढ़ाना चाहिए। नो, आई हैव माई ओन टेक्निक्स, आई हैव माई ओन मेथड्स। स्टूडेंट्स आर कन्विंस, जब मेरे मेथड अच्छे हैं तो मैं किसी से कंपेयर क्यों करूं। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, सबके साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, शरीर का ध्यान रखिए। स्पेंड टाइम विथ
पॉजिटिव पीपल, अच्छे लोगों के साथ मिलो। रिफ्रेम योर सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक्स। सेल्फ नेगेटिव जो है रिफ्रेम करो, और हमेशा एक्ट एज इफ यू फेल कॉन्फिडेंट। किसी भी परिस्थिति में हो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओ, मैं कॉन्फिडेंट हूं अपनी। इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रेसिव होगी? सीटिंग पोजीशन, हमारा बैठने का तरीका क्या है? लीनिंग, आर्म्स, हैंडशेक, आई कांटेक्ट, अफर्मेटिव मूवमेंट, यानी सबके लिए नेगेटिव नहीं होना। हेल्प अस टू मेक पॉजिटिव, यही तुम्हारी मदद करेंगे आपको पॉजिटिव बनाने के लिए। एक और चीज आती है, हमें एक चीज का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। नो मोर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसका डर निकालना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, इसको कैसे करेंगे? नो योर टॉपिक्स, पहले तो हमें अपने टॉपिक का पता होना चाहिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हमें किसी की फिक्र नहीं। गेट ऑर्गेनाइज्ड, अपने उस टॉपिक के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए उसे ऑर्गेनाइज करो, प्रैक्टिस करो, और जो चैलेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। चारों तरफ अपने आप सक्सेस दिखाई देगी। ब्रीथ डीपली, गहरी सांस लो। फोकस ऑन योर मटेरियल, जो मटेरियल है उस पर बात करो। सेलिब्रेट योर सक्सेस, अगर तुम्हें किसी जगह सफलता मिली है तो सबके साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ उसको सेलिब्रेट करो। फियरलेस टॉकिंग, बिना डरे अपनी बात करो। गेट सपोर्ट इफ रिक्वायर, अगर जरूरत है तो किसी की मदद लेने से भी मत चूको। तो ये हमारे आज पर्सनालिटी के ऊपर थे, सारे जितने भी ये पॉइंट्स थे। सेकंड सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जो क्लास में अभी हम सेकंड सिचुएशन में सिटिंग करेंगे वहां, तो ऐसे करेंगे, जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो एक तरफ बैठेंगे, जो लोग हिंदी पढ़ाते हैं वो एक तरफ बैठेंगे, हिंदी संस्कृत यानी लैंग्वेज, और बाकी सब मिक्स बैठे। चलते हैं दूसरे सेशन के लिए दूसरे रूम में। सर आप